Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and hope that you are learning well from my videos, and I also expect that you are spreading it well with your friends, your colleagues, your batchmates, your juniors too, because I am taking junior classes also. So about plus one, we are trying very best. Our topic, which is in continuous process, is complex number. Okay. Now today I have decided to teach you two topics. One is conjugate of a complex number and another one is modulus of a complex number and some properties. Listen, first topic is conjugate. Conjugate of a complex number. First of all, let me tell you, a complex number is written as a plus iota b, where a is the real part and iota b is the imaginary part of a complex number. As earlier I have told you, the definition of complex number, the number which contains real as well as imaginary numbers. Okay. Now we have to find out the conjugate of a complex number. Listen, the symbol for conjugate is a bar over the z, and we have to apply this bar both sides. What actually conjugate is? It is process to change sign of imaginary part. Okay. So z bar, what value we will get? Here it is a plus iota b, and if we apply conjugate over here, then the sign of iota will be changed. If it is plus, then it will become minus. If it is minus, then it will become plus. Then z bar will be a minus iota b. Okay. Let me take an example. Find conjugate of minus 4 plus 3 iota. Okay. What you have to do? You have to change the sign of iota only. Let it be a complex number z. Then z bar conjugate will be minus 4 minus 3 iota. I hope you all are clear with conjugate of a complex number. There are some properties related with conjugate of complex number. Let me tell you one by one. First property is, if we find the conjugate of a complex number, then what will result? It will be z itself. If we have conjugate of a complex number, then its result will be z. That is a number. Illustration we need to do. A plus iota b. Let us find first z bar, that is a minus iota b. Again finding the conjugate. What will happen? Just change the sign. A plus iota b. Just compare this one and this one. Both are same. So we can say z bar, again bar, is equal to z. Got it? This is the first property. That is z bar by bar is equal to z. Okay. You have to note down all kind of properties simultaneously. साथ साथ करते रहिए note. ठीक है? Let's go for second property. Second property is z plus z bar equal to what? Actually, we need not to memorize these
properties. Automatically it can situate in our mind. Automatically. How? Let me tell you. Z is equal to a plus iota b and z bar will be a minus iota b. Just add them. Z plus z bar is equal to 2a, or both of these will be cancelled. What can we say? It becomes twice of the real of, let's say, we write it as real of z. Real of z. ठीक है? मतलब अगर हम इनको ऐड करके रट्टा मारना जाए तो उससे बेहतर है करके देखें. Twice of real of z. Simultaneously, if we do z minus z bar, then it will give us twice of imaginary of z. Clear? Both of these properties. Let me explain you here. Z plus z bar is equal to twice real of z, and z minus z bar is equal to twice imaginary of z. Clear? Okay. Let us move ahead. Next property is z. If z equals z bar, it implies z is purely real. अगर z और z बार इक्वल है तो ये प्योरली रियल होगा, मतलब इसमें इमेजिनरी आयोटा होगा ही नहीं. बात क्लियर है? दूसरी बात, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ हो गई. फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर z प्लस z बार अगर 0 है, देन z इज प्योरली इमेजिनरी. बात समझ आई? z और z बार इक्वल होंगे. मैं आपको एक क्लियरेंस देता हूं. z और z बार इक्वल कब होंगे? जब उनका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा. मतलब जैसे a प्लस आयोटा भी है, अगर z बार करेंगे तो हम a माइनस आयोटा भी होगा. अब ये दोनों इक्वल नहीं है. अगर इक्वल होंगे तब जब यहां पे प्लस होगा. ठीक है? बात समझ आई? और ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं. ये तो z ही हो गया, है क्या? z ही हो गया ना. तो z और z बार जो है ना वो इक्वल तभी होंगे जब z पूरी तरह से रियल होगा, और z और z बार इक्वल टू 0 तब होगा जब z इज प्योरली इमेजिनरी. ठीक है जी? बात समझ आई? मैंने ऐसा बोला z प्लस z बार इक्वल टू 0. अगर ये 0 इक्वल है तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा. ठीक है? इसको कुछ मेरे बोलने में भी हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, या कई बार हो जाता है ऐसा. तो 6 प्रॉपर्टी है इसकी. अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका कॉन्जुगेट निकालने के लिए कहा जाए तो इट विल बिकम z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट. मैं एग्जाम्पल लेके बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है कि अगर भी इसको मैं a प्लस आयोटा b लू और इसे c प्लस आयोटा d ले, चलो कर ही देते हैं. तो ये बनेगा a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी. बात समझ आई? ये आयोटा और इसमें आयोटा कॉमन ले लिया, प्लस का साइन है इसलिए कॉमन ले लिया. ये तो हमने सॉल्व कर दिया इसको. अब इसका कंजुगेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस डी. ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड पे सॉल्व करें तो ये बनता है a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d. आपको एक कमाल की बात बताऊं, मैं ऐसे ही कई क्लास में समझा रहा था, मैंने ऐसे ही करवा दी. एक बच्चा उठ के बोला, सर ये a प्लस आयोटा b कहां से आए?
अब समझ जाओ, आप में भी कोई ऐसा सोच रहा होगा कि कहा था ए प्लस आयोटा भी, हमने इन्हें एज्यूम किया है अपनी तरफ से। Z1 जो है वो ए प्लस आयोटा भी माना है मैंने, Z1 जो है वो ए प्लस आयोटा भी माना है, और Z2 जो है वो सी प्लस आयोटा डी माना है। ठीक है, तो अब जरा इसे सिंप्लीफाई करें तो ए माइनस आयोटा बी प्लस सी माइनस आयोटा डी, कंजुगेट में क्या होता है, आयोटा का साइन बदल जाता है। इसे सिंप्लीफाई करें तो ए और सी इकट्ठा हो गया, ए प्लस सी, ठीक है, माइनस आयोटा कॉमन इन दोनों में, और यहां रह गया बी प्लस डी। आप देखो क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। आगे की प्रॉपर्टीज में पूरी तरह से ऐसे इलस्ट्रेशन नहीं दूंगा, ठीक है, बस आपको रिजल्ट्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। ये जो 4/5 मैंने लिखी नहीं थी, आपने नोट कर ली होगी, नहीं की तो थोड़ा सा बैक करो और नोट करो, ठीक है। ये 6th प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी अब हम करते हैं। 7th प्रॉपर्टी है, अगर इनके बीच में माइनस का साइन हो, Z1 माइनस Z2 हो और इसका कंजुगेट निकालना हो, तो ये बनेगा Z1 माइनस Z2, बोथ का अलग अलग कंजुगेट। ये 7th प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी लिख देते हैं Z1 माइनस Z2 कंजुगेट विल बी Z1 माइनस Z2 कंजुगेट। बात क्लियर है। इसके बाद इनके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अगर Z1 इंटू Z2 हो और उसका कंजुगेट क्या होगा, Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। ऐसे ही डिवाइड हो Z1 बाय Z2, सारे का अगर कंजुगेट हो ऐसे, तो ये बनेगा Z1 का कंजुगेट बाय में Z2 का कंजुगेट। ठीक है, बस इसमें एक ये चीज जरूर लिखनी है कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कभी भी नीचे 0 नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई 10 प्रॉपर्टी? नो वे। एक 10वीं और भी है, वो है कि Z और Z बार को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, Z और Z बार को, यानी कि Z और कंजुगेट ऑफ Z को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें आयोटा नहीं लिया जाता, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, याद रखना, सबसे ज्यादा। आपको शायद मजाक लग रहा होगा, लेकिन मजाक नहीं समझना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। इसके बिना तो यूं समझ लो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नहीं कर सकते। रियल पार्ट, इसको मैं बता देता हूं क्या मतलब इसका, कि जेड है हमारे पास, मान लो ए प्लस आयोटा बी, जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। तो जेड और जेड बार को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। ये देखो जेड इंटू जेड बार क्या बन गया, ए प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन से लगाई मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस माइनस 1 बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है क्या ये है रियल पार्ट का स्क्वायर और ये है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 10 प्रॉपर्टी है, 10 में से मैक्सिमम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये कैसे बनती है, प्लीज नोट कर लो ये वाला पार्ट भी। इसके बाद हम करेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स डू द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट जो मैंने अभी करवाई। अब हम पहले करते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को हम इस तरह से लिखते हैं, जेड के पीछे आगे पीछे तो पैरेलल लाइन लगाकर, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट। कुछ याद आ रहा है? वही है, बिल्कुल वही है। अभी आगे यूज करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, फटाफट नहीं भागना कि ये कहीं देखा देखा लग रहा है। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। और याद रखना ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं हम। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आएगा। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए आगे पीछे दो पैरेलल लाइन, ये सिंबल है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये है ए और ये है बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला था, पुट करेंगे, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट 9 + 16 25 दैट इज इक्वल टू 5। बड़ा ही इजी है ये, तो नोट कर लीजिए। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस कर लें। बहुत काम आती है बेटा ये बहुत ज्यादा हर जगह काम आती है जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 है। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट भी 0 है और रियल ऑफ, ये जैसे ना इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी जेड लिखते हैं ऐसे, ये भी 0 है, रियल ऑफ जेड भी 0 है। बात क्लियर? दूसरी बात, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस उसके कंजुगेट के मॉड्यूलस के और उसके एडिटिव इनवर्स के मॉड्यूलस के इक्वल होता है। जैसे z है हमारे पास a प्लस आयोटा भी, z बार क्या होगा a माइनस आयोटा भी, माइनस z क्या होगा माइनस a माइनस आयोटा भी, यही होगा ना। इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। सारे साइन चेंज कर दिए। अच्छा, आप इसका जरा मॉड्यूलस निकालो, वो क्या आएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका निकालो जरा, ए जेड बार का ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तीसरा है माइनस जेड का मॉड्यूलस, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर अंडर द रूट, ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ना। तो आप इनके मॉड्यूलस की इस प्रॉपर्टी को भी संभल कर याद करेंगे, लिख भी लीजिए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रीढ़ की हड्डी है, इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी। कैसे? थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने सबसे लास्ट में गई थी, 10th प्रॉपर्टी कंजुगेट की। वो प्रॉपर्टी क्या थी, है याद आपको? चलो मैं याद दिलाता हूं। जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या था, जेड इंटू जेड बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी, ये होता है। अगर मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर हम कर दें तो वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा इसे और इसे ध्यान से कंपेयर करो, ये बनेगा जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। इससे पहले प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया, मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड और जेड बार का मॉड्यूलस, ये सारे इक्वल होते हैं। तो हम यहां पर भी वही चीज लिख सकते हैं, माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर और जेड कंजुगेट का स्क्वायर, ये सभी इक्वल होते हैं। और इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन या जिसमें स्टेटमेंट ना दे रखी हो, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ना दे रखी हो, उनमें प्रूविंग के लिए सबसे ज्यादा इनका यूज होता है। और जेईई में भी अगर कुछ आता है ना तो इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर ही आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम वही छोटी छोटी बात करते हैं।
Z1 डॉट Z2 की, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ, ये होगी Z1 डॉट Z2। ठीक है, अब तक मैं करवा चुका हूँ Z2 तीन हो चुके ना, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट Z1 इंटू Z2 होगा, और Z1 बाय Z2 का मोड निकालेंगे तो ये भी Z1 मोड बाय Z2 मोड। ठीक है, और क्या हो सकता है? इन प्रॉपर्टीज को बेटा प्लीज संभाल के रखना। मैं चाहता हूं कि एक और पेज निकाल के, सुंदर सा व्हाइट पेज, उसके ऊपर सारी अपने हाथ से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, ठीक है, और लिख के अपने किसी फाइल में डाल देना जो भी आप असाइनमेंट बनाते हैं। इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, जिंदगी में बहुत काम आने वाली चीज है। अगर ये है Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसकी खासियत क्या है? इसमें कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आता, पक्की बात है। ये बनेगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, चाहे ब्रैकेट में लिख दो उसमें लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2 रियल ऑफ Z1 इंटू Z2। रियल ऑफ Z2 का बार, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस कर देगा। और मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपने, मैं आगे देता हूं, Z1 लेना है A प्लस आयोटा B और Z2 लेना है आपने C प्लस आयोटा D। मुझे बताना कि क्या आप इसे वेरीफाई कर पाए या नहीं कर पाए। अगर कर पाए तो यस करना, नहीं कर पाए तो नो लिखना, नो वी कुडंट वेरीफाई, ताकि मैं इसको वेरीफाई करने के लिए एक और वीडियो आपके सामने बना के दे सकूं। बात क्लियर है? ठीक है, और ये थी हमारी इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं एनसीईआरटी में अलग से नहीं लिखी मिलेगी, ये सारी की सारी आरडी शर्मा या अदर प्रेस्क्राइब बुक्स में मिल जाएगी, रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगी। लेकिन आरडी शर्मा में बेस्ट है, तो मैंने ये आरडी शर्मा से सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं ताकि इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन किए जा सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम जेईई की तैयारी के लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, सिलेबस तो है ही है, लेकिन इसकी हर जगह जहां भी यूज है वो सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। इन प्रॉपर्टीज को भी यूज करेंगे और इसके पोलर फॉर्म और ये बहुत सब कुछ है इस चैप्टर में, बहुत कुछ है, धीरे धीरे करके करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद, एंड कीप स्प्रेडिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग ऑल्सो, कमेंट जरूर करने। ठीक है, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।